السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین، کل گورنر سندھ صاحب نے ایک ایسی بات کی کہ جس سے اب ایک نئی ڈیبیٹ کا آغاز کر دیا انہوں نے۔ جنرل راحیل شریف کے حوالے سے ان کا بیان سامنے آیا کہ وہ عام انسان اور عام جنرل تھے۔ ہر بات بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی ہے۔ اب کوئی جماعت کراچی بند نہیں کرا سکتی۔ محمد زبیر، کراچی آپریشن کا 100% کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے۔ گورنر سندھ، میڈیا رپورٹس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، اسی طرح راحیل شریف نے بھی کراچی کو ٹھیک کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ پاناما کیس کا فیصلہ جتنی جلدی آئے گا پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ اس فیصلے کے انتظار کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج کی حالت بری ہے۔ اسلام آباد میں گفتگو۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ ان کی رائے ہے، اس کا احترام ہم کرتے ہیں۔ اب کیا حقائق تھے اور کیا نہیں تھے یہ ہم سب جانتے بھی ہیں۔ بہرحال ترقی نمایاں، سیکیورٹی بہتر، نواز شریف، سیاسی معاملات قانون کے مطابق نمٹانا ہماری جمہوری شناخت ہے۔ پاک چین تعلقات بلند ترین سطح پر ہیں، سی پیک سے عوام قریب آئیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں چین کی سفارتی اور عملی سپورٹ قابل تحسین۔ مئی میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم اجلاس میں شرکت کروں گا۔ سی پیک سے خطے کے ممالک میں باہمی تجارت بڑھے گی۔ آئی جی حتمی فیصلے تک کام جاری رکھیں۔ سندھ ہائی کورٹ حکم امتناع ختم کرنے کی حکومتی درخواست مسترد۔ سندھ کابینہ کا ایجنڈا اور وفاقی صوبائی حکومت کے قانونی افسران سے دلائل طلب۔ کیس کی سماعت 11 اپریل تک ملتوی۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ناظرین سندھ میں اب ہے کہ ہر روز تقریباً یہی خبر آتی ہے کہ جی خواجہ صاحب کو ہٹا دیا گیا یا ان کو بحال کر دیا گیا۔ اگر ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ پولیس اس میں کلیدی اختیار کی حامل بھی ہے اور وہ اس کو کام کرنا بھی ہے۔ اہمیت ہے ظاہر ہے، پولیس کی ریڑھ کی ہڈی ہے پولیس، لیکن اگر کسی ایک صوبے میں اس کے آئی جی کے متعلق روز ابہام کی صورتحال پیدا کی جائے گی یا پیدا ہوگی تو پھر یہ سارے معاملات جن پر ضروری ہے کہ فوکس رکھا جائے وہ کس طرح پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ سندھ حکومت ہمیں نہیں پتا کہ کیا سوچتی ہے، کس طرح کام کرتی ہے۔ بہرحال یہ ان کا طرز طریقہ ہے کام کرنے کا۔ مارشل لاء سے برا زمانہ انتظار کر رہا ہے، ہر ایک کے لیے الگ انصاف۔ آرٹیکل 6 کا ملزم عدالت نہیں آتا، قانون کیا کرے رضا ربانی۔ مارشل لاء دور میں عوام نے حق کا نعرہ بلند کرنے سے انکار نہیں کیا، ہر صعوبت برداشت کی جس سے ملک میں لولی لنگڑی جمہوریت آئی۔ جد و جہد کی کامیابی میں صحافیوں کا اہم کردار ہے۔ چیئرمین سینیٹ۔ ایٹمی ہتھیار پہلے استعمال نہ کرنے کی ڈاکٹرن جھوٹ۔ بھارتی جنگی عزائم خطے کے لیے خطرناک ہیں، یہ پاکستان کی جانب سے بات آئی۔ پاکستان کی تجویز کردہ اسٹریٹیجک ریسٹرین رجیم ایٹمی تصادم سے بچنے کی بہترین حکمت عملی ہے۔ سپریم کورٹ notices change of heart by MDA in Bahria Town case. پاکستان ready for talks with India on terrorism. فارن آفس کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیاز نیوکلیئر ڈاکٹرن شفٹ از ریسپانسبل۔ فارن آفس کریڈٹ فار کراچی آپریشن گوز ٹو نواز۔ یہ زبیر صاحب کی بات۔ پروگریس ویزیبل، سیکیورٹی امپروو ان پاکستان۔ پی ایم جسٹس سسٹم از ڈفرنٹ فار ایوری ون، ربانی۔ اچھا، ایک اور خبر بھی، پاکستان انڈیا واٹر ٹاکس ان جیپڈی۔ بی بی سی نے یہ خبر دی کہ مجوزہ سیکٹری لیول ٹاکس جو ہونی تھیں رتلے اور کشن گنگا ڈیمز پر، اس مہینے جو شیڈیول تھی سیکٹری لیول مذاکرات ملاقات، وہ ابھی ذرا تھوڑا سا تعطل کا شکار ہونے لگ رہا ہے کہ یہ ہے اور ہو سکتی ہے۔ اس پر ابھی مزید پیش رفت کس طرح آگے ہوگی اس بارے میں بھی نشاندہی ابھی نہیں ہو رہی۔ تو ناظرین یہ ہماری خبریں آج کی، اور ہم اب اپنے آج کیونکہ جمعہ ہے تو رپورٹرز جو ہمارے ہیں پاکستان بھر میں ان سے رابطہ کریں گے، بات کریں گے کہ ان کے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے آگے چل رہا ہے معاملہ۔ لیاقت امان ہمارے ساتھ گھوٹکی سے موجود ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ساتھ ایک کالر بھی تھے جنہوں نے یہ بات کی نشاندہی کی کہ گھوٹکی کے مسائل کو بھی سامنے لے کر آئیں، جس طرح ہم نے میرپور خاص پر بات کی تھی۔ تو آج لیاقت امان ہمارے ساتھ گھوٹکی سے موجود۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ضلع گھوٹکی میں ترقیاتی منصوبے اور تعمیراتی کاموں کی کیا صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ سکولز
اور کالجز جو ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں, بنیادی تعلیمی سہولیات کس طرح ہیں وہاں پر, منتخب ایم این ایز اور ایم پی ایز کون ہیں, کیا کر رہے ہیں. لیاقت کو خوش آمدید. السلام علیکم لیاقت. وعلیکم السلام. جناب لیاقت صاحب, ہمارے پاس ابھی پچھلے دن میں کال آئی تھی ضلع گھوٹکی سے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ دیگر علاقوں کی طرح, دیگر اضلاع کی طرح سندھ کے گھوٹکی کا بھی کچھ حال اچھا نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ گھوٹکی کے اگر پس منظر کو دیکھا جائے تو گھوٹکی سندھ کا سب سے مالا مال ڈسٹرکٹ ہے. اچھا. گھوٹکی میں معدنیاتی اور کئی بڑی بڑی کمپنیاں یہاں پر قائم ہیں. ایشیا کی سب سے بڑی کھاد فیکٹری بھی یہاں پر موجود ہے. گیس فیلڈ, پیٹرول فیلڈ اور تمام معدنیاتی جو اللہ تعالیٰ نے گھوٹکی کو جس سے نوازا ہے, شاید کسی ڈسٹرکٹ میں اس طرح سے اللہ پاک نے نوازا ہو. مگر گھوٹکی میں جو تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں, لیاقت کیا قادر پور بھی اسی علاقے میں؟ سوری, میں آپ کا سوال پوچھ رہا ہوں, کیا قادر پور گیس فیلڈ بھی اسی علاقے میں ہے؟ جی جی بالکل, قادر پور گیس فیلڈ, ماڑی گیس فیلڈ, ماڑی پیٹرولیم اور بہت ساری یہاں پر فیلڈز اور کئی پاور پلانٹ قائم ہیں. اگر ترقیاتی اور تعمیراتی کام کی بات کی جائے تو وہ یہاں پر ایسا ہمیں کوئی بھی نظام نظر نہیں آتا. یہاں پر بااثر ٹھیکیدار جو منتخب نمائندگان ہوتے ہیں ان کے رشتہ دار یہاں پر ٹھیکیدار ہوتے ہیں. ٹھیکے تو منظور کیے جاتے ہیں, سڑکوں پر پتھر پھینکے جاتے ہیں, اس کے بعد ٹھیکیدار بالکل غائب ہو جاتے ہیں, جو شہریوں کے لیے باعث عذاب بنے ہوتے ہیں, اور ان کے سہولت کے لیے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ شہریوں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. اور جو منتخب نمائندگان ہیں ہمارے ایم این اے علی گور مہر صاحب ہیں, علی محمد مہر جو سابق وزیر اعلیٰ سندھ رہ چکے ہیں, ایم پی جو ہے احمد علی پیٹافی ہیں, اور ہمارے صوبائی وزیر تعلیم جو ہے جہاں مہتاب ڈہر بھی اسی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور راجہ خان مہر, علی نواز عرف راجہ خان مہر بھی یہاں سے منتخب ہوا ہے گھوٹکی سے. تو گھوٹکی انتہائی بدتر حالت سے جو ہے دو چار ہے. یہاں کے لوگ جو ہیں انہوں نے جو انہوں نے اپنے امیدوار جو منتخب کیے تھے ان کی شکلیں بھول چکے ہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات یہ بتا چلوں, جو سوشل میڈیا ہے وہ منتخب امیدواروں کے لیے کئی لوگوں نے جو ہے گمشدہ جو اعلانات ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, کیونکہ ووٹ لینے کے بعد یہ لوگ یہاں پر نظر نہیں آتے. اور ترقیاتی کام بالکل نہیں ہے. صحت کی بات کی جائے تو یہاں پر ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہیں, لوگوں کے لیے علاج معالجے کی سہولتیں میسر نہیں ہیں, اور ابدیات جو آتی ہیں وہ پھینک دی جاتی ہیں یا بیچ دی جاتی ہیں, مگر یہاں کے لوگوں کو نہیں دی جاتی, جس کی وجہ سے لوگ مشکل سے دو چار ہیں. اور یہاں پر منتخب امیدوار جو تھے جو ان سے ووٹ لے کر گئے تھے انہوں نے جو ہے پلٹ کر ان افراد کی طرف نہیں دیکھا. سڑکوں کے ٹینڈر تو پاس ہوتے ہیں, ان کے بل بھی لیے جاتے ہیں, مگر سڑکیں نہیں بنائی جاتی, جس کی وجہ سے جو پس گردائی کے دیہات ہیں, جو شہر کی طرف آنے والے لوگ ہیں وہ بھی مشکل سے دو چار ہیں. تو سڑکوں کی بات کی جائے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. شہر میں گندگی ہے, شہر میں جو سڑکیں ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اور صحت نہ ہونے کے برابر ہے. تو اور پانی پینے کا اتنا خراب ہو چکا ہے کہ یہاں کا کھروئی کا علاقہ ہے, وہاں پر 13 افراد ابھی جو ہے ہیپاٹائٹس بی سی کی وجہ سے جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں. ان کے احتجاج جو ہے جاری ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کچھ دن پہلے ڈہر کی ضلع گھوٹکی کا شہر ہے وہاں پر آئے تھے, ان افراد نے ان کے سامنے بھی احتجاج کیا تھا. اگر بلدیہ کی بات کی جائے تو بلدیہ کے جو ملازمین ہیں وہ بھی احتجاج پر ہیں. جو یہاں پر بلدیہ کے جو منتخب ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, تو کہا جائے ان کی جانب سے بھی جو بلدیہ کے ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں فراہم نہیں کی جا رہی, ان کو اپنی لیگزری جو گاڑیاں ہیں وہ خریدنے میں مصروف آتے نظر آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے بلدیہ کے ملازمین بھی تقریباً احتجاج پر ہیں. شہر میں صفائی ستھرائی کا نظام بالکل ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. دیہاتوں کی جانب جو جانے والے سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ضلع گھوٹکی بالکل ابتر ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن, کیونکہ جو منتخب نمائند کیے جاتے ہیں لوگ ان کو اپنے اس عوام کا خیال نہیں آتا. اور دوسری ابھی جو بات یہاں پر ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تمام سرداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لے گیا ہے. تو اب اور جو عوام ہے وہ جو ہے اس سے دو چار ہوگی مشکلات ہے, کیونکہ وڈیرے سارے مل کر سب پی پی کے پلیٹ فارم پر جا چکے ہیں. ان کے خلاف کوئی ابھی الیکشن لڑنے والا دکھائی نہیں دیتا, کیونکہ تمام وڈیرے وہاں ایک ہی پلیٹ فارم پر چلے گئے ہیں. اچھا, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بھی بتائیے گا لیاقت کے گھوٹکی ضلع گھوٹکی میں اقلیتی ہماری برادری بھی بہت بڑی تعداد میں آباد ہے, ان کی کیا حال احوال ہے, ان کے کیا مسائل ہیں؟
बिल्कुल, यहाँ पर जिला घोटकी में अक़लियती बिरादरी जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में बसती है और बहुत बड़े यहाँ पर कारोबार जो है वो भी हमारी अक़लियती बिरादरी जो है के ताल्लुक रखने वाले लोग जो है यहाँ पर कर रहे हैं, तो उनके भी मसाइल बहुत ही हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वडेरे सरदार हैं उनसे अगर देखा जाए तो उनसे पार्टनरशिप की एक ऑफर करते हैं, तो यहाँ पर हमारे देखा है हमने जो बड़े बड़े यहाँ पर कारोबारी संती लोग हैं वो अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उनको यहाँ के वडेरों को भत्ता कहें या जहाँ उनको बिजनेस में हिस्सा कहें, वो भी हमें यहाँ पर नजर आता है कि वो देने पर मजबूर होते हैं। और कानून की बात की जाए तो अगर पुलिसिंग की बात की जाए तो यहाँ पर भी जिस तरह से आम दूसरे दीगर इलाके हैं सिंध के वडेरों का इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पर भी वही चीज नजर आती है, जिसकी वजह से अक़लियती बिरादरी अभी बहुत ही यानी कि मुश्किलात से दो चार है। और कई लोग जो है अक़लियती बिरादरी के यहाँ से जो है नकल मकानी भी कर चुके हैं हिंदुस्तान की तरफ। तो यहाँ पर जो उनकी एक तो यहाँ पर एक और मामलात होते हैं जो यहाँ पर इस्लाम कबूल करने वाले मामलात होते हैं अक़लियती बिरादरी के। आपने देखा होगा कि यहाँ पर रेंगटल कुमारी के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू हुआ था, तो उसके बाद भी यहाँ के अक़लियती बिरादरी अब जो है अपने शहरी इलाकों तक जो है महदूद है। इससे पहले वो देहातों में भी जाते थे, लोगों के पास आते जाते थे, अब जो उनका कंडीशन है वो सिर्फ शहरों तक ही महदूद है, इससे बाहर वो नहीं जाते, अपने जो बिजनेस है उनके वहाँ पर बस वहीं तक महदूद है। अक़लियती बिरादरी बहुत बड़ी तादाद में घोटकी, टहरकी, मीरपुर माथिल, उबाड़ो में जो है आबाद है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया लियाकत, आपने बड़ी तफसील से बताया कि वहाँ क्या हो रहा है। ज़ाहिर है कि हम चाहेंगे कि ये मामलात बेहतरी की तरफ जाएं और आपसे इंशाल्लाह आइंदा भी किसी नशिस्त में ज़रूर फ़ीडबैक लेंगे, जानेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। तो नाज़रीन, सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, तमाम पाकिस्तान में जो ऐसे अजला हैं कि हर वक्त उनकी बात नहीं होती या मसाइल की निशानदही नहीं होती, तो उससे हमें पता, जब हम ये बात करते हैं तो पता यही चलता है कि जो तरक्की की रफ्तार है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि प्रोग्रेस विजिबल, तो शायद ये ओपिनियन या ये परसेप्शन या तासुर जो है हो सकता है ठीक हो, लेकिन अगर हम इसको पूरे पाकिस्तान पर फैला के देखें तो कहीं कहीं ये तासुर इतना ज़्यादा सही नज़र नहीं आता। उसकी वजह शायद ये है कि मुस्लिम लीग ने जहाँ जहाँ अपनी जो उसका असर रसूख है, जहाँ उसने वो इस्तेमाल किया, जहाँ पे पैसा खर्च किया, जिन इलाक़ों में उन्होंने कोई प्लान बना के उस प्लान पे अमल भी किया, तो हो सकता है उन इलाक़ों में तो तरक्की नज़र आनी शुरू हो गई हो। और सिक्योरिटी तो खैर ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतर हुई है पहले की निस्बत, लेकिन ज़ाहिर परफेक्शन की लेवल में नहीं पहुँची है। वरना तो जो पै दर पे वाक़यात का हमें सामना करना पड़ता है, चाहे वो पंजाब के हवाले से हो, KPK के हवाले से बलूचिस्तान, सिंध में अभी तक सेहवन शरीफ के बाद से अब तक तो कदरे सुकून है। अल्लाह करे सारे मुल्क में ये सुकून कायम रहे। लेकिन जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात है, तो लग यही रहा है कि हर शोबे में काम करने की बहुत गुंजाइश बाकी है। काम मुस्तकिल बुनियादों पर, वॉर फुटिंग पर, जिस पे कहा जाता है कि होना ज़रूरी है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से दो हमारे सामने आर्टिकल्स कहिए फुल पेजेस पे। एक तो हमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की तहरीर जंग अखबार में पूरा सफ़ा है, उस पर है कि जमीयत उलमा इस्लाम के 3 रोज़ा 7 साला आलमी इज्तिमा का आगाज़। उसके अलावा सिचुएशनर डॉन अखबार में कासिम मुइनी कराची से उन्होंने लिखा, अब जमीयत उलमा इस्लाम की जो 7 साला तकरीबात हैं, दरअसल जमीयत उलमा हिंद का क़याम हुआ था 1919 में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में। और उसके बाद जिस तरह से ये जमात आगे बढ़ी, जिस तरह से इसके जो भी सियासी अगराज़ व मक़ासद हैं वो सब पे सामने आया हुए, तो उससे एक बात वाज़ेह होती है कि जमीयत उलमा हिंद में जब उसका क़याम हुआ था, तब तो ये पार्टी जो थी पाकिस्तान की हामी नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी जमीयत उलमा हिंद में 2
समझिए कि दो सोचों का आगाज़ हुआ। एक जो फैक्शन था उसको मौलाना शबीर अहमद उस्मानी लीड कर रहे थे, और वो उलमाए कराम जो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी के साथ शामिल थे, उन्होंने पाकिस्तान के क़याम की भरपूर हिमायत की थी और कायद आज़म का बड़ा उनके साथ गहरा ताल्लुक़ रहा। अब 1919 में इस पार्टी का क़याम आता है, लेकिन ये जो 7 साला तकरीबात हैं ये हिजरी कैलेंडर के हवाले से मनाई जा रही हैं, या उनका आगाज़ हुआ है। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उस हवाले से तो अभी इनको 98 साल हुए हैं। तो ये थोड़ी सी तफसीलात थी, जो लोग उलमाए इस्लाम की तारीख़ जानना चाहते हैं उनके सामने ये 2 रेफरेंस आर्टिकल्स हैं, ज़रूर पढ़ें। इस वक्त हम अपने नुमाइंदे जो लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, अफजाल सईद साहब, उनसे रुजू करेंगे और उनसे बात करेंगे। आपके सामने नाजरीन ये वाक़या हुआ कि बेदियाँ रोड पर बुध को मरदमशुमारी की टीम पर जो खुदकुश हमला हुआ था, उसके बाद सामने आई तफसीलात के कुछ अफवाज पाकिस्तान के कुछ कारकुन और दीगर सिविलियन अफराद शहीद हुए इस वाक़े के नतीजे में। तो बात करते हैं कि क्या वजूहात सामने आई अभी तक, और लाहौर में जो ज़ेर तामीर मेट्रो लाइन मंसूबा जो कि अदालत में इस वक्त चल रहा है, उस हवाले से भी अदालती कार्रवाई पर ज़्यादा बात करने से हम ये चाहेंगे कि इस वक्त कौन सा फेज़ है जो कंप्लीट हुआ तामीरात का। अस्सलाम वालेकुम अफजाल। वालेकुम सलाम। अफजाल ये बताइएगा, बेदियाँ रोड, अगर मैं गलत नहीं समझ रही तो ये डिफेंस और क्लिफ्टन को जो इलाका जोड़ता है, और वहाँ पे जिस तरह की आबादी है तो वो मेरा ख्याल है कि मुतवसत या मुतवसत तबके से भी ज़रा नीचे की आबादी है, सही है गलत है? जी बिल्कुल, आपकी बात ये दुरुस्त है। ये जो बेदियाँ रोड का एरिया था जहाँ पर ये इंसिडेंट पेश आया था, जिसे मानावाला का एरिया कहते हैं जी, इसी रोड से जहाँ पर इस स्पॉट पर इंसिडेंट हुआ था बुध के रोज, वहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर अली ट्रेनिंग सेंटर का स्कूल था, जहाँ पर एक रोज कबल ही एक पासिंग आउट परेड हुई थी, जिसमें आईजी पंजाब समेत 100 से कई सैकड़ों से ज्यादा जो थे एलीट फोर्स के जवान वो पास आउट हुए थे। और इसी स्पॉट के इतराफ की जो आबादी है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जो कि इंतहाई सेंसिटिव एरिया है, और चंद किलोमीटर फासले पर ही जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, और इतराफ में जो है वो इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरिया है। लेकिन ये एरिया इस हवाले से हसास नोयत का था कि यहाँ पर जो थे तब अहम इमारतें भी थी। लाहौर का सबसे बड़ा इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी था, बॉम्बिंग ऑपरेशन भी यहाँ पर किया जाता रहा था, सर्च ऑपरेशन भी यहाँ पर किया जाता रहा था। लेकिन अफसोसनाक वाकया जो बुध के रोज अलग सुबह 7:45 पर पेश आया। एक वैन के अंदर जो थी सेंसिस करने वाली टीम जो थी अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी कि मानावाला स्टॉप के करीब, तो ड्राइवर था जिसका नाम उस्मान बताया जा रहा है, और जो जराए हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा था कुछ ड्राइवर का ताल्लुक जो था वो खुदकुश हमलावर के जो सहूलतकार थे उनके साथ था। तो जैसे ही उसने उस मानावाला स्टॉप के करीब गाड़ी को ब्रेक लगाई तो खुदकुश हमलावर जो कि बैक साइड से आ रहा था, अगर बात की जाए तो ये डिफेंस से टूवर्ड्स बेदियाँ रोड की तरफ आ रहा था, मानावाला की तरफ। तो वहां पर जैसे ही गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो पीछे से ही खुदकुश धमाके ने अपने आप को जो था वो उड़ा लिया था, जिसके नतीजे में 5 फौजी जवान, जिनमें से एक एयरफोर्स का जो था वो एहलकार भी शामिल था, और 4 और जो थे पाक आर्मी के जवान। तो कुल मिला के 5 पाक फौज के जो थे वो जवानों ने जामे शहादत नोश किया, और 2 जो सिविलियन थे वो मौका पर भी तो जाम बहक हो गए थे। लेकिन हैरतअंगेज सूरत हाल ये है कि जो रेस्क्यू इंतजामिया है उनकी जानिब से जो है वो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि इतना बड़ा इंसिडेंट लाहौर के इलाके बेदियाँ रोड में पेश आया। इब्तदाई तौर पर ये कहा जा रहा था कि ये जो था सिलेंडर ब्लास्ट था, लेकिन जैसे ही वहां पर सीटीडी हुकाम पहुंची, फॉरेंसिक साइंस वाले पहुंचे, आर्मी और रेंजर्स के जवानों ने जब इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया तो सूरत हाल जो थी काफी एक अलग सी दिखाई दे रही थी। क्योंकि जब मैं भी वहां पर सारा दिन स्पॉट पर मौजूद रहा था तो ये देखने में वहां पर जरूर आया था कि जो इंसानी जिस्मों के जो अज़ा थे वो 500 मीटर की हदूद तक पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। तो तकरीबन 11 बजे के करीब मैं उस वक्त लाइव ही खड़ा था, बीपर के दौरान मेरी कम्युनिकेशन जारी थी। तो सीटीडी हुकाम की जानिब से वहां पर जो हमलावर था उसका जो था सर लाकर उसको कस्टडी में लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया था। ये भी पहला वाकया नहीं था, बुनियादी तौर पर जो तमाम तर सूरत हाल वो देखने में आई तो यही लग रहा था कि जो 19 साल के बाद जो पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी जो थी वो स्टार्ट हुई थी, उस मरदमशुमारी मुहिम को सबूताज करने का जो था एक आंसर था। लेकिन जैसे ही उसके बाद जो आर्मी चीफ जो थे उनकी जानिब से एक हौसला अफजा बयान आया था कि
जो है मरदम शुमारी को हर हाल में जारी रहेगी। और जो है तमाम तर जो फौजी जवान है, सेंसिस का अमला है, उनके हौसले बुलंद हैं। तो इस बात की यह कहा है कि पाक फौज जो है वो दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम के खात्मे के लिए जो है वो काम कर रही है। लेकिन एक जो है सवाल यहाँ पर ये भी उठता है। अफजाल साहब, हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना है, वापस आते हैं तो आपसे मजीद बातें जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। लाहौर से हमारे साथ अफजाल सईद शामिल गुफ्तगू हैं। और जिस तरह से अफजाल ने फरमाया, अफजाल आप फरमा रहे थे कि फ़ौज के हौसले तो बुलंद हैं, अल्लाह करे मरदमशुमारी बिल्कुल सही तरीके से पाया तकमील तक पहुँचे। अब ज़रा मेट्रो बस की तरफ आते हैं। ज़ाहिर ज़ेरे समात है ये केस। हमें ये बताइए, जब से केस कोर्ट में गया है, तामीराती काम रुक गया है या चल रहा है? लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट का फैसला आया था पिछले साल अक्टूबर के अंदर, तो उसमें जो थे 11 पॉइंट्स लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बताया गया था कि 11 जो तारीखी मुकामात हैं इसके अतराफ में ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो तरक्याती काम है उसको रोक दिया जाए। उसको जैसे ही रोका गया तो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी जानिब से बेज़ाब्तियां भी जो है वो काफी देखने में सामने आई। तो अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 2015 से जो शुरू हुआ था ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मंसूबा, और अब तक तकरीबन जो है 63% जो है वो तामीराती काम जो है वो मुकम्मल किया गया है अभी तक। इसके 2 पैकेजेस बनाए गए थे डेरा गुजना से चबुर्जी तक, जिसे हम पैकेज 1 कहते हैं, जो कि एयरपोर्ट से जो आता है कायदा इंटरचेंज, वहां से चबुर्जी तक का जो एरिया है उसे पैकेज 1 का नाम दिया गया। और वहां पर सिर्फ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का 79% काम जो है वो मुकम्मल किया गया, यानी कि जो पाइल्स थे, यू टप गार्ड थे, और फिर वो जो है अभी तक मुकम्मल किया गया है। जो जेरे जमीन जो थी रोड थी वो वैसे ही टूट फूट का शिकार है। अच्छा, ये बताइए वो जो मंसूरा वाला ट्रैक है वो इसी का हिस्सा है ना? जी बिल्कुल, वो पैकेज 2 के जिम्मे पैकेज 2 के अंदर आता है। वो अली टाउन से और चबुर्जी तक है। और एक बड़ी जो थी एक नहली, वो मकबूल जेबी कॉल्सन जो उस पैकेज 2 के ऊपर काम करती हुई दिखाई दे रही है। पिछले साल आजकल के ही दिनों में एक तेज आंधी आई थी जिसके बायस जो पिलर थे जो तमीर हो रहे थे वो जमीन बोस हो गए थे। तो इसके नतीजे में लोगों में काफी खौफ फैल गया और कई दिनों तक वहां पर जो था काम भी बंद रहा। तो उसका अल्टरनेट नतीजा ये निकला कि जो एलडीए इंतजामिया थी उसकी जानिब से वो हरकत में आए और जो मकबूल जेबी कॉल्सन जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो बाकायदा तौर पर कैंसिल कर दिया गया और 2-3 माह उस पैकेज 2 के ऊपर जो था वो काम भी बंद रहा, जिसके बाद दोबारा बिडिंग हुई और उसी ही मकबूल जेबी कॉल्सन की जो सिस्टर कंपनी थी उसको ही दोबारा जो था वो नवाज दिया गया था। और ये देखने में आया कि जो पंजाब हुकूमत के जो नवाजिशात करने वाले जो अफसरान हैं उनकी जानिब से जो है मनपसंद बंदों को जो वो ठेके दिए जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आए दिन जो है कोई ना कोई हादसा होते हैं। अब इनकी नहली का ये आलम है कि जो मेट्रो बस ट्रैक का जो रूट बन रहा है जहाँ पर मेट्रो बस चलाई जानी है वहाँ पर जो है वो आए दिन ना बिजली होती है, ना पानी होती है, ना गैस के कनेक्शन जो है वहाँ पर काट दिए जाते हैं। जिसकी बड़ी वजह ये है कि जब नेस्पा की जानिब से ये डिजाइन तैयार किया गया, जब इसका PC1 जो था जिला पंजाब में मोहम्मद शहबाज शरीफ को पेश किया गया तो उस बात में इनकी कोताही भी देखने में आई क्योंकि 2006 के अंदर मुल्तान रोड तोसी मनसूबा जो था वो शुरू किया गया था, जिनमें मुल्तान रोड को तोसी किया गया था, अंडरग्राउंड जो थे वो सेवेज डाले गए थे और 4 अरब रुपए जो था वो उसकी लागत आई थी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का काम जब 2015 में शुरू हुआ उसको दोबारा तौर पर मस्मार कर दिया गया और जो नई सेवेज की पाइपलाइन भी डाली थी वो भी सारी जो थी वो इस वक्त तबाह हो गई। अब वहाँ की सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों भी सुनने में आया था कि एलडीए इंतजामिया की जानिब से जो पैकेज 2 है जो कि अली टाउन से चबुर्ज तक आता है वहां पर अब उन्होंने दोबारा रीडिजाइन किया है जो रूट है सड़कों का कि वहां पर जो थे एक तो मंसूरा के करीब अंडरपास बनेगा, दूसरा जो है यतीमखाने के करीब बनेगा और तीसरा जो है वो चबुर्जी के करीब बनेगा क्योंकि वहां पर जामिया मस्जिद कासिया भी है तो उसके ज़ेरे जमीन मेट्रो बस जो है वो ट्रेन गुजारनी है। लेकिन इंतजामिया की नहली जो है वो इस बात से देखी जाती है कि जब आप इतना बड़ा मंसूबा
जो कि 250 अरब रुपए की लागत से एक फायर तकमील तक पहुंचना है। तो पहले क्यों नहीं हिकमत अमली तैयार की जाती? बिल्कुल ठीक है, के पास जो है वो दाएं बाएं लोग बैठे होते हैं। ठीक है, पहले क्यों नहीं अपनी आपसे इजाज़त लेनी होगी क्योंकि सरगोदा भी हमने जाने। बहुत शुक्रिया आपसे, इंशाल्लाह अगली दफ़ा ज़रूर तफसील से इस प्रोजेक्ट की खामियों के बारे में और ख़ूबियों के बारे में जानेंगे। ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम आपको सरगोदा की तरफ लेके चलते हैं। हाफिज़ सिद्दीक गोंदल हमारे साथ वहाँ से मौजूद होंगे, उनसे हम जानेंगे कि सरगोदा में गुज़िश्ता दिनों जो एक वाक़या आस्ताने पे पेश आया जिसमें 20 अफराद का सफ़ाकाना कत्ल किया गया, उसके मुहर्रिकात क्या थे। सरगोदा आपको मालूम है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से पूरी दुनिया में शोहरा रखता है, तो वो ज़ाहिर कोई ऐसा दूर उफ्तादा मकाम नहीं है, पसमानदा इलाका नहीं है। खुशामदीद कहते हैं हम हाफिज़ सिद्दीक को। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। गोंदल साहब फरमाइएगा, ये जो आस्थाने पे कत्ल हुआ उसके बाद हमें पता चला कि ये सिलसिला जो है वहाँ पे कोई नया नहीं है, 2-3 दिनों से ये कत्ल जारी भी थे। इसके अलावा हमें आप ही की जानिब से ये भी पता चला कि इस इलाके में बहुत से आस्थाने मौजूद हैं, ये कोई एक आस्थाना नहीं। क्या है, क्या सूरत हाल क्या है, बताइएगा। जी, ये सरगोदा का नवाही चक 95 शुमाली है, जहाँ पे ये इंतहाई अफसोसनाक दिल हिला देने वाला ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पे एक दरबार के मुतवल्ली के हाथों 20 अफराद का कत्ल और इसके बाद कई सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। और इस वाक़या की वजह से इंटरनेशनल सतह पे भी बहुत बदनामी हुई है और दरबार पे इस किस्म का वाक़या होना ये कई मतलब सवाल जो है वो छोड़ गया है। और जो 2 मार्च को ये वाक़या रूनमा हुआ, जहाँ पे ये चक 95 शुमाली जो है इसकी एक यूनियन काउंसिल है जिसमें 4 गांव हैं, जिसमें चक 95 शुमाली, चक 85 शुमाली, चक 91 शुमाली और एक चक और है। ये 4 चकोक जो हैं इन पर मुश्तमिल एक यूनियन काउंसिल है और इस इलाके में गुजर बरादरी बहुत ज्यादा है। चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो इस मरतबा भी मुंतखब हुआ है वो भी गुजर फैमिली से ताल्लुक रखता है, वो एक साबिक रुकन असम्बली का भाई है। तो ये जो वाकया 20 अफराद के कत्ल का दरबार अली मोहम्मद गुजर पे पेश आया, इसके बाद पुलिस ने जो है वो तफ्तीश अपनी शुरू कर दी और कई सवालात उठे। और सबसे पहले जो पुलिस ने तफ्तीश की तो उसमें 2 चीजें सामने आई। एक तो गद्दी नशीनी का मामला सामने आया और दूसरा मामला जो सामने आया वो ज़ईफुल एतकादी का सामने आया। तो ये लोग कोई इस तरह नहीं कि अनपढ़ लोग हैं, ये मरने वाले जो लोग हैं ये भी बहुत पढ़े लिखे मालदार लोग थे। और ये जो दरबार का मुतवल्ली है अब्दुल वहीद, ये भी इंतहाई पढ़ा लिखा, इंतहाई सलाहियतों का मालिक था, जिसने अपने इल्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाया और इस तरफ रागिब किया। और इसका कहना यह था कि उससे एक ताकत अता हुई है खुदा की तरफ से कि जी वो लोगों की गुनाह झाड़ सकता है। और इसका तरीकाकार ये था कि लोगों को दरबार पे बुला के उनको मुख्तलिफ बातों में उलझा के इस बात पे कायल कर लेता कि आपके गुनाह झाड़ने की ताकत जो है वो मेरे पास है। और ये लोगों को बरना करके, खवातीन को बरना करके तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। और ये वाकया जो है ये जुमा के रोज शुरू हुआ, जहाँ पे इसने अपने खास मुरीदैन को बुलाया। ये वो लोग थे जो गद्दी नशीनी की जो सौंपदारी है वो रखने की अहलियत रखते थे। ये इन लोगों को इसने पहले बुलाया। और इसमें जो दरबार है अली मोहम्मद गुजर, इस दरबार में जो अली मोहम्मद सुपुर्दे खाक हैं उनके बेटे को भी बुलाया गया, आसिफ, जो पुलिस में एहलकार था, उसको भी शामिल किया गया, उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो भी इसी में जाम बहक हुआ। बिल्कुल सही है। अच्छा हाफिज साहब, हमें इजाजत लेनी पड़ेगी, कम वक्त रह गया था, आपसे जरा देर में बात हुई, लेकिन अगली दफा जब बात करेंगे तो फिर इस इलाके के पूरे इलाके का भी आपसे हम बिल्कुल कहेंगे कि जायजा हमें लेके दिखाएं। बहुत शुक्रिया जनाब, आप सबने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आज हम कॉल्स नहीं ले सके क्योंकि हम अपने नुमाइंदों से बात कर रहे थे। प्रोग्राम आप देख रहे थे फ्रंट पेज।